વડાપ્રધાન આવાસ પર ચાલી રહેલી જે ટી પાર્ટી હતી તે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। સંભવિત મંત્રીઓ સાથેની આ બેઠક પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી। શપથ લેનાર મંત્રીઓ સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ અહીં ટી પાર્ટી કરી। ટી પાર્ટી પર નરેન્દ્ર મોદી સંભવિત મંત્રીઓને પણ મળ્યા છે। અમિત શાહ, મનસુખ માંડવિયા ટી પાર્ટીમાં હાજર રહ્યા। આ ઉપરાંત એસ જયશંકર, જેપી નડ્ડા પીએમ નિવાસ સ્થાને हाजर रहा। आ उपरांत गजेंद्र सिंह शेखावत, किशन रेड्डी पीएम निवास स्थाने हाजर रहा था। सीआर पाटीलનું પણ મંત્રી પદે નામ ફાઇનલ ગણવામાં આવી રહ્યું છે। અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ મંત્રી બનશે। મનસુખ માંડવિયા એનડીએ સરકારમાં ફરી એકવાર મંત્રી બનશે। પ્રહલાદ જોશી એનડીએ સરકારમાં મંત્રી બનશે। ટીડીપીના 2 સાંસદોને ફોન આવ્યા છે। ટીડીપીના રામ મોહન નાયડુ મંત્રી બનશે અને ચંદ્રશેખર પેમાસાની પણ મંત્રી બનવાના છે। જીતનરામ માંઝી, અનુપ્રિયા પણ મંત્રી બનવાના છે। જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા, જયંત ચૌધરીને પણ ફોન આવ્યો છે। તેઓ પણ આ ટી પાર્ટીમાં પહોંચ્યા હતા। જેડીયુ સાંસદ રામનાથ ઠાકુર પણ મંત્રી બનશે અને જેડીયુના લલ્લનસિંહ પણ મંત્રી બનશે, જ્યારે જેડીએસના કુમારસ્વામી પણ મંત્રી બનશે। ચિરાગ પાસવાનને પણ ફોન આવ્યો, અર્જુન મેઘવાલને પણ ફોન આવ્યો। સર્બાનંદ સોનોવાલ, નીતિન ગડકરી પણ મંત્રી બનશે અને 25 જેટલા સાંસદ, કેબિનેટ અને રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરવાના છે। એનડીએના તમામ પક્ષમાંથી એક મંત્રી બનશે। પિયુષ ગોયલ, કુમારસ્વામી પણ મંત્રી બનવાના છે। પ્રતાપરાવ જાદવ, મોહન નાયડુ પર મંત્રી બનશે। ભૂપેન્દ્ર યાદવ, બસવરાજ બોમ્મઈને પણ ફોન આવ્યો છે, જે મંત્રી પદના શપથ લઈ શકે છે। આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। અજય, ટી પાર્ટી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને જે લોકોને ફોન આવ્યા હતા, તમામ જે નેતાઓ છે, જે સાંસદો છે, તે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને લગભગ નક્કી મનાઈ રહ્યું છે કે આ જ બધા નામો આજે શપથવિધિ કાર્યક્રમમાં મંત્રી તરીકે શપથ લેતા જોવા મળશે। देखिए, निश्चित तौर पे 7:15 बजे का ये कार्यक्रम है और उसको लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि ये अंतिम मीटिंग थी जो प्रधानमंत्री आवास पे चल रही थी। करीब अभी के अगर वक्त की अगर बात करें तो 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। 1.5 घंटे के वक्त हो चुका है। हालांकि कुछ सांसद ऐसे थे जो थोड़ा बाद में भी बुलाए गए, जिसमें निमुबिन जो गुजरात के भावनगर से सांसद हैं, उनका भी नाम आता है। ये सामने शायद मनसुख मांडविया देख सकते हैं कि अभी आ गए हैं और अभी पीएम आवास पे ये गए हुए थे। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले संदेश न्यूज़ पे इनसे बात करें और इनको भी बुलाया गया था और माना जा रहा है कि इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनको दिया जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले जो कहा जा रहा था कि गुजरात का में कम मंत्री पद दिए जा सकते हैं, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी संख्या हो चुकी है। एक तरह से सीआर पाटिल का भी नाम शामिल है, वो भी जो पीएम आवास है वहाँ पर गए हुए थे। और इस तरह से अगर जेपी नड्डा का नाम भी जोड़ लिया जाए, एस जयशंकर का नाम जोड़ लिया जाए, अमित शाह का नाम जोड़ लिया जाए, सीआर पाटिल, निमुबिन, और तो एक तरह से अच्छी खासी संख्या हो सकती है। तो लेकिन बाकी की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि आज करीब 25 के करीब जो है केंद्रीय मंत्री के पद पे जो है अपना संभाल सकते हैं। इसके अलावा वो संख्या करीब 52 से 55 के करीब हो सकती है। तो फिलहाल मनसुख मांडविया यहाँ पे आ चुके हैं और धीरे धीरे जो सांसद हैं वहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह वहाँ पे निकले, और नितिन गडकरी भी वहाँ पे निकले। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूरी पुख्ता तौर पे जानकारी नहीं आई, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो पहले से संभावित नाम चल रहे थे, जिनका नाम आपने पढ़ा भी, वो एक तरह से वहाँ पे पहुँचे हुए थे और एक तरह से ये अंतिम कार्यक्रम था। और इसके बाद जो शपथ विधि है उसकी रस्मी प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी। जी અજય, પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે જે સાથી પક્ષો છે તેમને મંત્રાલયની ફાળવણી કેવી રીતે થશે, તેમાં કંઈક કેઓસ જોવા મળશે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે જે લોકોને જે ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે અથવા તો જે લોકોના નામ સામે આવી રહ્યા છે તેનાથી પક્ષો પણ સંતુષ્ટ જણાઈ રહ્યા છે। એવું નથી કે ક્યાંયથી પણ એવો વિરોધનો સૂર જોવા મળી શકે કે આ પાર્ટીને ઓછું મંત્રીપદ આપ્યું કે આ પાર્ટીને વધારે મંત્રીપદ આપ્યું, કેવી એવી કોઈ તકલીફ हालना समय तो नहीं लागी रही कि आ मंत्रिमंडल में जोवा मळे। देखिए, निश्चित तौर पे एकदम यही पूरा मामला देखने को में आया। सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि एनडीए के घटक दलों के बीच जब इस बात पे चर्चा होगी तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो हो सकते हैं। इसकी हालांकि शुरुआत वहाँ से हुई थी जब केसी त्यागी का स्टेटमेंट आया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि अग्निवीर योजना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। तब ये माना गया कि हो सकता है कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट उभर के आए। लेकिन जैसे जैसे जेपी नड्डा के घर पे और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक चलती गई, सभी घटक दल जो है उनको संतुष्ट किया गया और यहाँ तक कि टीडीपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये सरकार सुचारू रूप से चलेगी और
बेहतर तरीके से चलेगी। आज खुद जब हम रामनाथ ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर, जो समाजवाद के पुरोधा माने जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, तो तब भी यही सवाल पूछा था कि क्या ये मिलीजुली की सरकार जो है उसी तरह से चलेगी जिस ठसक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 की सरकार चलाई थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरा प्लान कर रखा है और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यह सरकार बेहतर तरीके से चलेगी। और कुल मिला के जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि बिना शर्त उनकी तरफ से मोदी सरकार को समर्थन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, या कह सकते हैं कि जिनको जो जो पद चाहिए थे, कम से कम उस पर भारतीय जनता पार्टी या जेपी नड्डा ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है। माना जा रहा है कि अगर वित्त मंत्रालय छोड़ दिया जाए, विदेश मंत्रालय छोड़ दिया जाए, रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया जाए और गृह मंत्रालय को छोड़ दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा जिद नहीं है। इसमें एक लोकसभा स्पीकर का भी पद है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने पास रखेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो घटक दल हैं उनके पास रेल मंत्रालय भी जा सकता है और इसके अलावा कृषि मंत्रालय जा सकता है। कई सारे जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय में भी एमओएस बनाया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मनसुख मांडविया हैं, जितना बेहतर तरीके से उन्होंने कामकाज किया है और कई सारे योजनाओं को उन्होंने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि मनसुख मांडविया का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी पोस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे। तो फिलहाल 1.5 घंटे चलने के बाद ये बैठक खत्म एक तरह से हो चुकी है और एक एक करके नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उसमें भी गुजरात के प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा कम संख्या नहीं, जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि चूंकि अभी विधानसभा चुनाव गुजरात में नहीं होने हैं, तो हो सकता है कि इस बार कम संख्या दी जाए, लेकिन ठीक ठाक संख्या गुजरात से भी आती है। जी अजय बने रहिए हमारे साथ। अजय, तो आ તમામની વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીના ત્રીજા કેબિનેટમાં અલગ અલગ રાજ્યોના અલગ અલગ જે સાંસદો છે તેમને સ્થાન તો મળ્યું છે, જેમાં એવા કયાસો લગાવવામાં આવતા હતા કે જ્યાં ઓછી બેઠકો મળી છે ત્યાંથી સાંસદો ઓછા હશે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એ પરિસ્થિતિ અત્યારે વિપરીત જોવા મળી રહી છે। મહારાષ્ટ્રમાંથી પણ ઘણા બધા નામો છે જે સામે આવ્યા, આ ઉપરાંત ગુજરાતમાંથી પણ ઘણા બધા નામો સામે આવ્યા છે, અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ ઘણા બધા નામો જે છે તે સામે આવી રહ્યા છે।